Do you know that in the recent case, High Court has ordered police officers to pay compensation to the accused person? Hello people, hope you are doing well. आज हम लोग एक लीगल न्यूज कवर करेंगे which is illegal detention by police. Delhi High Court orders rupees 50,000 compensation to man for illegal detention in police lockup for 30 minutes. दिल्ली हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए का कॉम्पनसेशन देने को कहा पुलिस ऑफिसर्स को, क्योंकि उन्होंने एक पर्सन का इलीगल डिटेंशन किया था, इलीगली उन्हें जेल में रखा था या फिर हम कहें लॉकअप में रखा था 30 मिनट्स के लिए. What was the whole matter? The Delhi High Court said it was deeply troubled that the petitioner was simply picked up, brought to the police station, placed inside the lockup for no rhyme or reason. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक जो था किसी भी इंसान के लिए इट वाज अ ट्रबल, और पेटिशनर को बस सीधे ही उठाया गया और लेकर के आया गया पुलिस स्टेशन में और उसे लॉकअप के अंदर डाल दिया और कोई भी रीजंस भी रिकॉर्ड नहीं किए गए. Observing that it is troubled by the way citizens are treated by the police who behave as if they are above the law. जस्टिस ने कहा कि इस तरीके से पुलिस बिहेव करती है जैसे कि ये लोग लॉ से ऊपर हैं. The Delhi High Court awarded rupees 50,000 compensation to a man who was illegally detained and put in a police lockup for half an hour. A single judge bench of Justice Subramaniam Prasad said in its October 5 order that the amount shall be recovered from the salaries of two police officers in question. जिन पुलिस ऑफिसर ने ऐसा किया उनकी सैलरी से ये 50,000 रुपए का जुर्माना जो है या कॉम्पनसेशन, जुर्माना नहीं कहेंगे हम इसे, कॉम्पनसेशन कहेंगे, कॉम्पनसेशन लिया जाएगा. The order came in a man's plea seeking compensation for his illegal arrest and detention in the police lockup on September 2, 2022. He claimed that he was brought to the police station and was allegedly put in the lockup and released after some time without any formal arrest or first information report or daily diary entry. उस्मान ने कहा, उसने ऐसा क्लेम किया कि पुलिस उसको लेकर के आई और उसको लॉकअप में डाल दिया और कुछ समय बाद छोड़ दिया, लेकिन ये किसी भी तरीके का फॉर्मल अरेस्ट नहीं था, ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई थी और जो केस डायरी मेंटेन करी जाती है उसमें भी कुछ भी एंट्री नहीं करी गई. The main complaint to the police commissioner, sorry, the man complained to the police commissioner. However, allegedly no action was taken. कोई भी एक्शन नहीं लिया गया कमिश्नर को बताने के बाद भी. He thereafter moved the high court seeking compensation. उसके बाद वो हाई कोर्ट जो है कॉम्पनसेशन के लिए गए. The court observed that a woman had a fight with a vegetable seller. अब ये जो है ये मैटर हुआ था. मैटर क्या हुआ था कि एक महिला जो है फाइट में इंडल्ज हो गई थी एक वेजिटेबल सेलर से और वो इंजर्ड हो गई थी. ठीक है. She came to the man's shop, और ये जो मैन जो हमारे पेटिशनर है, एंड टोल्ड हिम दैट शी हैज बीन स्टैब्ड, और उनको आकर के बताया कि उनको स्टैब किया गया है, मतलब चाकू मारा गया है. ठीक है. The man, the petitioner in the case, called the police, the court noted. पेटिशनर ने जो है पुलिस वहां पर बुलाई ये सारा मामला देखने के बाद. अ कंप्लेंट वाज रिसीव्ड बाय द पुलिस एंड व्हेन द पुलिस रीच्ड द स्पॉट दे पिक्ड अप द मैन एंड प्लेस्ड हिम इन द लॉकअप. कंप्लेंट जो है वो पुलिस ने रिसीव करी. उसके बाद जब वो स्पॉट पर पहुंचे, क्राइम सीन पर पहुंचे जहां भी ये सब चल रहा था, वहां पर उन्होंने आदमी को उठाया और लॉकअप में डाल दिया. The High Court said that even for that short period of time, the man had been deprived of his personal liberty. हाई कोर्ट ने कहा भले ही 30 मिनट तक का समय था, उसको 30 मिनट तक के लिए अंदर डाला था, बट दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपने उसकी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया है या वायलेट किया है. Justice Prasad observed that the high-handed way in which the police acted, throwing to the winds the constitutional and fundamental rights of a citizen, is appalling. The court observed that punishment of censure is not likely to have any effect on the career of the police officer and will not be a sufficient deterrent to the officer. ठीक है कि जो ये पनिशमेंट है इस जो है करियर पे तो कोई असर नहीं आएगा, बस ये है, and it will not be a sufficient deterrent also. While granting compensation, the court observed that the censure should be of such a nature that other officers too must not emulate such actions in future. ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेशन उनका देने का मतलब यही था. उनका कोर्ट को सिर्फ ये सीख देनी थी कि अगर कोई भी दोबारा इस तरीके का फ्यूचर में काम करता है तो उसके ऊपर भी इसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा.
and a meaningful message is sent to the authorities that police officers cannot be law unto themselves. और एक मीनिंगफुल मैसेज जो है सोसाइटी में या अथॉरिटीज तक गया, या सोसाइटी में इस तरीके से फैला कि पुलिस ऑफिसर जो है वो कभी भी लॉ के ऊपर, पुलिस ऑफिसर्स हमारे कभी भी लॉ के ऊपर नहीं हो सकते और वो खुद को लॉ के ऊपर ना समझे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो हाई कोर्ट का फैसला था ये सही फैसला था या नहीं था। ओके, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।